Okay, so hello everyone. In the last lecture, we have discussed about the Yak tool of the compiler to design the parser. Now, in the today's lecture, I'm going to give you some programs. I'm going to tell you some programs to create the to evaluate some grammar using Yak tool. So, in the last lecture, I've given you one assignment to perform, that is a language which is accepting a to the power n and the value of n is greater than equals to 1. This we are going to evaluate, right? So I have already opened the Lex tool, and in the Lex tool what I have inserted the stdio.h, and one more file I'm going to include, that is y.tab.h. Why are we including this file? This file will extract the tokens from the Yak program. That is why we are including this file, right? So in the rules section, I'm creating a pattern. If you have entered a small a, so it will check the token capital A from the Yak, right? And at the end of the string, that is if you are pressing return key, it will return the string as it is, which means जो भी string आपने input करी होगी, it will return that string. और अगर इस pattern के सिवा आप कुछ भी input करते हैं, so it will return 0, which means the string will not be accepted, because हम जो grammar बनाने जा रहे हैं उसका जो domain है, that is only small a to the power n को हम generate करने जा रहे हैं यहाँ पर. So again, I have told you in the last lecture, there is no need to construction of the main program in the Lex part, right? So I'm going to save this file. With the L extension, and suppose I'm giving the name of the file is g1.l. Fine. Now create the Yak part for this particular grammar. Okay. So in the Yak part, what is required? We have to create a token. Token का नाम हमने क्या रखना है? Capital A. So we have created a token capital A. Now I'll start making the grammar. अच्छा, program किसके लिए बना रहे हैं? ये comment डाल देते हैं. We are creating a program for the generation of the language a to the power n, where your n is greater than equals to 1, right? ये create करने जा रहे हैं हम. तो इसका grammar क्या बनेगा वो भी बना लेते हैं. So grammar will be s tends to as and a. This will be your grammar, right? Because it will not accept null set. अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू है greater than equals to 0, तो फिर हो जाएगा as and a की small a, दूसरे वाले प्रोडक्शन में small a की जगह you will pass null. Fine. तो शुरू कर रहे हैं. Start. as is the accepting production. Then you will press enter. Okay. जब आप enter press करेंगे तो it should return 0, which means y.parse की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. Okay. So I'm ending this production. Now the next production, अब पूरी grammar generate करेंगे. So my production is as ओके. अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए. एक्चुअली हमने क्या करा हुआ है? द प्रोडक्शन इज as, विच मीन्स स्मॉल a की बात कर रहे हैं, और जो s का प्रोडक्शन है वो हमने नल बनाया हुआ है. तो विच मीन्स पहला प्रोडक्शन आपका बना as और दूसरा प्रोडक्शन बना है स्मॉल a, राइट? क्योंकि s की वैल्यू हमने यहाँ पर नल रख दी है. ओके. सो रूल सेक्शन को क्लोज कर देंगे. नाउ वील डिजाइन दी मेन. So मैंने मैसेज दे दिया printf enter a string. Okay, then if parse
द वैल्यू ऑफ वाई वाई पार्स क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी. सो प्रिंट एफ एक्सेप्टेड और वैलिड वट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू गिव. मेन को बंद कर दिया. देन हम बना लेते हैं वाई वाई एरर, विच मीन्स इफ यू हैव गिवन अ रॉन्ग स्ट्रिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेड. सो हमने यहां पर दे दिया नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, इसको बंद कर दिया. देन यू नीड टू क्रिएट वाई वाई रैप. फिलहाल मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है. सो अगेन आई एम सेविंग दिस फाइल. सो द फाइल एक्सटेंशन शुड बी .y. तो आपने यहां पर जाकर के g1.y फाइल बना ली. राइट, नाउ वील कंपाइल दिस फाइल. सो फॉर द कंपाइलेशन आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले कहां जाना है, टूल्स, ओपन cmd, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया. नाउ फर्स्ट कमांड दैट यू आर गोइंग टू यूज इज flex and the name of the lex file, that is g1.l. It is compiled. Now the next command will be yak. Options will be -dy and the file name with extension g1.y. Something is missing. Okay. Okay, I've missed the inverted commas here. Let's try once again. Percentage. Okay, this should be percentage and then bracket. So your file is compiled. So let's check whether your two files are created or not. कौन कौन सी फाइल क्रिएट होनी चाहिए, y.tab.c and y.tab.h. Now let's build the a.exe. तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, lex.yy.c and then y.tab.c पास करना है आपको. Now let's check whether a.exe is created or not. It is created. You can see this file. It is created. Now execute this file. A will take some time. Okay. तो मैंने सबसे पहले B डाल के देखा, not accepted. A, it is accepted. AA, it is also accepted. AB, not accepted. So I hope this is clear to everyone. So I'm closing the browser. I'm closing the command prompt. So this is the program for the language a to the power n, where n is greater than equals to 1. Now your assignment is, you have to create a program where n is greater than equals to 2, which means आपकी जो string है उसमें minimum जो set बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, आपकी जो string generate होके आनी चाहिए वो ये generate, minimum मतलब 2 आपके जो a है वो generate होके आने चाहिए. उसके बाद it can accept any number of a's, right? इस टाइप का आपको ग्रामर जनरेट करना है. सो ट्राई फॉर दिस ग्रामर. चलिए अब हम देखते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर बना करके देखते हैं. ओके, सो लेक्स पार्ट खोल लिया है मैंने. नाउ वील डिजाइन द सिंपल कैलकुलेटर पार्सर. तो अज्यूम करके चलते हैं कि आई विश टू क्रिएट, मैंने आपको ऑलरेडी लैब 11 में भी ये दिया हुआ है. So I wish to create a calculator where I can perform plus and multiplication operation. Fine. तो लेक्स प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने जो है
एक फाइल इंक्लूड करी है, इंक्लूड match.h, मैं ये फाइल इंक्लूड कर रही हूं, mat.h. Why I have included this file? Because I wish to use a command a to I, string to integer, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं. So that is why I have included this file. आपको हर चीज पता होनी चाहिए. Why are we including a particular file into the program? Then आपने इस लाइब्रेरी को ऐड करा. पर्पस क्या बताया था मैंने? This library will extract all the tokens that you have declared in the याक पार्ट. पार्सर पार्ट में आपने जो भी टोकन्स डिक्लेयर करे हैं उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लाएगा. ठीक है. इसके सिवा हम यहाँ पर एक और कमांड डाल रहे हैं, एक्सटर्न YYLVAL. मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे एंड यू विल सी दैट उसमें मैंने पर्पस बताया है, व्हाई आर वी इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. सो बेसिकली ये पर्टिकुलर वेरिएबल हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज YYLVAL जो है इट विल pass the values to the tokens, fine, using y.tab.h which is accessed by the lex. तो किस लिए यूज हो रही हैं? is used to pass values in y.tab.h. चलिए, so we are declaring the rule part now. तो रूल पार्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है? ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल एंटर करेंगे, न्यूमेरिक एंटर करेंगे, डिजिट एंटर करेंगे, एंड डिजिट कैन हैव मोर देन वन डिजिट ऑल्सो, राइट? तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया. नाउ अब जो भी हमने इनपुट डिक्लेयर करा हुआ है, जो भी इनपुट हमने इनपुट करा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू द न्यूमेरिक. तो यहाँ पर इनपुट कहाँ में आता है? इनपुट विल बी pointed by the YY text. It is a pointer which points to the input string, right? और क्या कर देंगे? रिटर्न एक टोकन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर आईडी को रिटर्न करेंगे. फाइन, ओके. नाउ पहला सिंबल मैं बनाने जा रही हूं प्लस. इफ प्लस अकर्स इन योर string, input string, then it should return plus operator. Fine. Then दूसरा ऑपरेटर हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन. तो अगर मल्टीप्लिकेशन इनपुट में आया है तो इट शुड रिटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. फाइन. ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है ये हम याक वाले पार्ट में डिक्लेयर करेंगे. और जब भी स्ट्रिंग फिनिश हो गई, विच मीन्स उसने एंटर प्रेस कर दिया है, तो हम रिटर्न कर देंगे 0 या फिर YY टेक्स्ट. आप जो चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपने या तो सेमीकोलन लगा दीजिए या फिर आप लिख दीजिए रिटर्न 0 अगेन. ठीक है. तो हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके. मेन को हटा दीजिए. एज यूजुअल मेन हम याक में बनाएंगे और इसको सेव कर लेते हैं. तो हमने इसे सेव कर लिया. हम सपोज इसका नाम मैंने दे दिया है cal.l. टेक्स्ट फाइल की तरीके से सेव कर लिया मैंने. कोई बात नहीं, सेव एज कर लेते हैं. सेव करते वक्त हमने ध्यान रखना है ऑल फाइल्स रखना है. cal.l. ठीक है. नाउ क्रिएट द याक पार्ट, न्यू याक. ओके. सबसे पहले इसे ठीक कर लेते हैं. परसेंटेज पहले होगा, ब्रैकेट बाद में होगा. टोकन डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले याक पार्ट में. सो आप डिक्लेयर्ड अ टोकन आईडी. अच्छा, करने क्या जा रहे हैं हम एक्चुअली? यहाँ पर ग्रामर बनाने जा रहे हैं.
E टेंड्स टू, या ऐसे कर लेते हैं, S टेंड्स टू E स्लैश E टेंड्स टू E प्लस T और T, और क्या बनाने जा रहे हैं, T टेंड्स टू E इंटू F और F, और क्या बनाने जा रहे हैं, हम ब्रैकेट भी दे सकते हैं एक्सप्रेशन में, तो ब्रैकेट वाला केस भी हैंडल कर लेते हैं, F टेंड्स टू विद इन ब्रैकेट E और ID, सीधे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो इस ग्रामर को हम हैंडल करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट वाला पार्ट हटा सकते हैं, या फिर आप उसको रख सकते हैं। ओके, नाउ डिफाइन द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। यू नो दैट कि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी होती है, या तो वो लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं या फिर वो राइट एसोसिएटिव होते हैं। तो एज यू कैन सी इन द ग्रामर, आपने पहला प्रोडक्शन लिखा है E टेंड्स टू E प्लस T, इसका मतलब आपका जो प्लस है इट इज लेफ्ट एसोसिएटिव, और सिमिलरली आपने जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है इट इज T टेंड्स टू T इंटू F, विच मीन्स आपका जो मल्टीप्लिकेशन भी है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपने टोकन लिखा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट। अगर राइट एसोसिएटिव है तो आपको यहाँ पर लिखना है राइट, तो मैंने लेफ्ट, दोनों ऑपरेटर जो है हमारे लेफ्ट हैं। अगर इसमें से कोई भी ऑपरेटर राइट है तो आपको फिर यहाँ पर जो ऑप्शन यूज करना है वो यूज करना है राइट। ओके, नाउ कोडिंग पार्ट में, रूल पार्ट में आ जाते हैं। तो हमने पहला रूल, एक्सेप्टिंग रूल, क्या बनाया हुआ है कि टोटल एक्सप्रेशन जो है वो E के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ कर रहे हैं, नाउ यू रिमेम्बर जब मैंने आपको याक पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे, डॉलर डॉलर, $1, $2, $3, $4 एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉलर डॉलर? वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, विच मीन्स E को सॉल्व करने के बाद S की जो वैल्यू आएगी, आप पहले प्रोडक्शन को देखिए, E को पूरा सॉल्व करने के बाद S की जो वैल्यू आएगी दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन हम लिखने जा रहे हैं, E टेंड्स टू E प्लस को हम ऐसे लिखेंगे, यू रिमेम्बर हमने वहां रिटर्न विद इन सिंगल कोट्स प्लस किया था, तो वो यहां से हो रहा है T, और क्या रिटर्न करेगा ये, डॉलर डॉलर इक्वल्स टू $1 प्लस $3। $1 क्या है, E की वैल्यू, और $3 क्या है, T की वैल्यू, और $2 क्या है, प्लस। तो हमें ऐड किसे किसे करना है, E की आपने जो वैल्यू दी है और T की आपने जो वैल्यू दी है वो हमने ऐड करनी है। तो $1 प्लस $3 को ऐड करेंगे। अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप T को रिटर्न कर रहे हो। आप पहले प्रोडक्शन को देखो, फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, E टेंड्स टू E प्लस T और T, तो हमने E प्लस T का तो वैल्यू क्या बना दिया, 1 प्लस 3, और जो दूसरा प्रोडक्शन है वो एज इट इज रिटर्न हो रहा है तो हमने उसको T कर दिया। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन लिखेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, T टेंड्स टू T मल्टीप्लाइड बाय F, ठीक है। और क्या रिटर्न करेगा ये, डॉलर डॉलर इक्वल्स टू $1 मल्टीप्लाइड बाय $3, फाइन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या रिटर्न कर रहा है, F रिटर्न कर रहा है, ठीक। ऊपर देखिए T टेंड्स टू T इंटू F और F। अब हम बनाएंगे F का प्रोडक्शन। तो जब आप F का प्रोडक्शन बनाएंगे तो F के प्रोडक्शन में पहले आप क्या बना रहे हैं, ब्रैकेट, तो ये तो स्ट्रिंग हो गया, देन यू आर कैलकुलेटिंग E, देन ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डॉलर डॉलर इक्वल्स टू $2, ओके। देख लेते हैं, $1 में ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, $2 में E आएगा जिसमें वैल्यू है एक्चुअली, और क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ आएगा, $3 में। अब यहां पर देखिए कि एग्जाम्पल, सपोज करिए मैंने लिखा 2 प्लस 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, E की वैल्यू क्या होगी,
इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन क्या बना है, ओपनिंग ब्रैकेट 5 क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रिटर्न करा, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ $2। अपार्ट फ्रॉम दैट एफ में आप क्या रिटर्न कर रहे हो, यू आर रिटर्निंग आईडी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईडी रिटर्न, $$ इक्वल्स टू $1, क्योंकि आपके पास केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है, आईडी इज ऑल अलोन, तो इसलिए आपने $1 को रिटर्न कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो योर ग्रामर इज एंड नाउ, आपकी ग्रामर खत्म हो गई है यहाँ पर। अब फाइनली आप क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। सो यू विल क्रिएट अ मेन फंक्शन, ओके। सो मेन फंक्शन में हमने क्या करा, इफ वही y पार्स इक्वल्स टू, सॉरी फंक्शन है ये, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो आपका कैलकुलेशन है, वो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई, उसका रिजल्ट आपको ऊपर दिख जाएगा। कहां से दिखेगा रिजल्ट, यहां से दिखेगा, जो आपने रिटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे जो आपने प्रिंट एफ बनाया हुआ है, यहाँ से आपको रिजल्ट दिखेगा, और उसके साथ वो क्या प्रिंट करेगा, सक्सेस। मेन को हमने बंद कर दिया, अब हम वाई बाय एरर वाला पार्ट बनाते हैं। वाई बाय एरर वाले पार्ट में मैंने क्या बनाया, प्रिंट एफ एरर इन एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। इसको बंद कर दिया, फिर वाई बाय रैप बना देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस नहीं होना चाहिए, और इसको सेव कर लेते हैं। सो cal डॉट y से मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। हमने 2 टोकन डिक्लेयर कर दिए हैं यहाँ पर, ओके। उसके बाद आईडी डिक्लेयर कर दिया है, 3 हो गया। चलिए रन करके देखते हैं, अपने आप एरर पता चलेगी। सो ओपन इन CMD, so first command is flex cal.l, it is completed, yak y dy and then cal.y, लेफ्ट में प्रॉब्लम है, okay. What is the problem in left? ओके, फॉर टाइम बीइंग जरा मैं इसे कमेंट कर रही हूँ, देन सी, क्योंकि ग्रामर हमने ऑलरेडी लेफ्ट एसोसिएटिव बनाए हुए हैं ग्रामर में, ऑपरेटर्स एक बार ही देख लेते हैं इसको रन करके। देन GCC lex.yy.c and y.tab.c, expected extern, okay, ओके, सेमीकोलन लगाना है यहाँ पर। चलिए फिर से करके देखते हैं, तो पहले अब फ्लेक्स चलाना पड़ेगा, cal.l देन -dy, क्या बनाई थी, cal.y, GCC lex.yy.c and y.tab.c, रन। चलिए A, आई थिंक मैंने कोई वो नहीं दिया है क्या, ओके, आई हैव नॉट गिवन एनी मैसेज, गड़बड़ हो गई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, printf enter expression, और यहाँ पे लिख देते हैं with only plus and multiplication, so that यूजर को ये मैसेज पता रहे कि उसको सिर्फ 2 ही ऑपरेटर यूज करने हैं।
प्लस और मल्टीप्लिकेशन। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। फ्लेक्स cal dot l, then yak minus dy cal dot y. Okay, now gcc lex dot yy dot c, sorry c, and y dot tab dot c. तो इज डन। a.exe बन गई होगी। सीधे रन करते हैं। देखिए क्लियर पता चल रहा है कि आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है। सो 2 + 3, ओ मैंने गलत शायद से एंटर करा। 5 स्पेस नहीं देना है, राइट। एंड देन एक बार ब्रैकेट भी करके देख लेते हैं। 5 × 3 + 2, ओह सॉरी, a 5 + 2 × 3, error in the expression, which means इसने multiplication नहीं लिया ब्रैकेट में। okay, now let's see the error। कहाँ प्रॉब्लम है ग्रामर में? This is let me check. I have already made this program. Maybe I'm missing some point. Okay, what I missed in it? Nothing, everything is fine. Okay, let's see our program. मैं छत पे
Fine, there is some problem in the program that I'm not able to catch right now. So I'm sharing the program that I've already made. Fine. So you can see this program. The program is almost same. The program is exactly same, except this the left associator, which does not make any difference in this program. I tell you why. Because I've created a grammar already which is unambiguous. The left option is required when your grammar is ambiguous. See the grammar. अगर आपने ग्रामर ये बनाई होती, फाइन, अगर आपने ग्रामर, मैं इस ग्रामर को इस तरीके से लिखती हूं, अगर आपकी ग्रामर ये होती, सी द ग्रामर, अगर मैंने ग्रामर ये बनाई है, इज इक्वल टू ई प्लस ई, then E into E, then you require to specify the associativity of the grammar, because associativity of the operator, because your grammar is ambiguous, but the grammar that I have made is unambiguous. That is why it is not required to write the associativity. So that is why I have made it as a comment. So the error is not because of this. There is something else that I missed in this grammar. So anyways, you see this program, we can run this program also. इस program को run करके देख लेते हैं, शायद से ये program सही है. Okay, for this I have to go back. This was the lex part, and yak part is this was the yak part. Now let's run the program. See, so there is some minor problem in my program that I've created right now. Otherwise, this calculator is working perfectly. It is parsing perfectly, right? एक बारी और कुछ करके देख लेते हैं. So error. So in this way, you can run the calculator. तो मैं आपको दोनों पार्ट इसके दिखा देती हूँ. This was the yak part, and calculator का जो lex part था वो ये था. This was the lex part of the calculator. Fine, so it was almost same. I have no idea what did I wrong in that. So anyways, this was the lex part, and this is the yak part of the calculator. So I'm ending my lecture here only. For your assignment, I am giving you one question. Try to create the parser for this particular grammar. So एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको इस वाली लैंग्वेज के लिए you have to create a program a to the power n where n is greater than equals to 1. एक तो आपको इसके लिए क्रिएट करना है, और एक और प्रोग्राम आप कोशिश करिएगा बनाने की where the language is going to accept a to the power n and ended with b. जो ग्रामर है, जो स्ट्रिंग है, वो एंड किससे होनी चाहिए? सिंगल बी से एंड होनी चाहिए, और जो n की कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, विच मीन्स ये किस तरीके की स्ट्रिंग जनरेट करेगा? AAB. दिस इज द मिनिमम सेट ऑफ द स्ट्रिंग. देन दिस कैन बी जनरेटेड, देन एंड सो ऑन. इस तरीके से स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेगा. ये मतलब मिनिमम 2 A जनरेट करेगा, बट स्ट्रिंग हमेशा आपकी किससे एंड होगी? B से एंड होगी. तो ये वाली ग्रामर आप कोशिश करिएगा बनाने की. यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन 1 तो मैंने ही बता दिया आपको, इक्वल्स टू 2 करके देखिएगा आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है. फाइन. सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन दी ग्रामर. अच्छा, वन मोर थिंग आई विश टू टेल यू. सपोज करिए यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन लेक्स वेयर you wish to verify that the string that you have entered is a comment or not, right? तो एक सिंटेक्स होती है. अब आप कमेंट को ध्यान से अगर देखिए तो कमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं,
राइट? इस तरीके से हम कमेंट को लिखते हैं। तो जब आप लेक्स में रूल पार्ट बनाएंगे तो रूल पार्ट बनाने के मेथड क्या होगा, सिंगल स्लैश, और उसके बाद हम यहां पर एक पैरामीटर पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट में 1, विच मीन्स इसके बाद एक सिंबल और आएगा, राइट? कंसेक्यूटिव दो सेम सिंबल हैं, और इसके बाद एक सिंबल और आएगा। क्या आएगा? इट विल बी अ कैरेक्टर और डिजिट, ये आएगा, एंड स्टार। सो इट इज अ रूल फॉर सिंगल लाइन कमेंट। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कमेंट। कमेंट आप सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हो? डबल स्लैश और उसके बाद स्ट्रिंग। इसका मतलब अगर आप इसका रूल बनाओगे तो क्या रूल होगा? पहला स्लैश और वही स्लैश दोबारा रिपीट होना है, और उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है, आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग पास करनी है। तो आपने रूल कैसे बनाना है? पहला सिंबल, उसके बाद एक और सिंबल आना है, और उसके बाद एक और सिंबल आना है, बट उस सिंबल का पैटर्न आपने यहां पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है? अब इसके बाद यू कैन राइट प्रिंट एफ, इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट। फाइन, सिंपल। ये हमने एक्शन पार्ट बना दिया है। दिस इज माय एक्शन पार्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द सिंगल लाइन कमेंट। नाउ व्हाट विल हैपन इफ योर कमेंट इज मल्टीपल लाइन? जैसे मैंने ये कमेंट बना दिया, आप 2-3 लाइन में ये कमेंट जाकर के खत्म होगा, और एंड किससे करोगे? स्टार स्लैश से करोगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहला सिंबल लगाया हमने स्लैश। नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज वन मोर सिंबल। एक और पैटर्न है मेरे पास, ठीक है? तो पैटर्न क्या है मेरे पास? स्टार। दिस इज दी पैटर्न। नाउ एक और पैटर्न है मेरे पास। क्या पैटर्न है मेरे पास? स्ट्रिंग। ये पास करोगे आप, दिस यू आर गोइंग टू पास। ठीक है? अब इसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, मतलब स्ट्रिंग आप जितनी चाहो उतनी टाइप करते जाओ, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा पैटर्न का, वो स्टार से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक सिंबल और आना है, तो 1 लगा दिया, एंड देन स्लैश आना है। ठीक है? और इसके बाद 1 फिर से लगाया हमने, विच मीन्स आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर और आई एम गोइंग टू प्रेस नल, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप इसके साथ एक्शन अटैच करोगे, प्रिंट एफ, दिस इज माई एक्शन। ये वाला 1 आपने क्यों डाला है? सो दैट इट कैन रिसीव मोर देन 1 लाइन्स। फाइन। और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करने के बाद इट विल गिव यू अ मैसेज मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिडक्ट द कमेंट। अच्छा, और मैंने एल्स का रूल क्या बताया था? अगर आपको इसके सिवा कोई भी पैटर्न एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, तो आप कमांड क्या लिखोगे? डॉट स्टार। तो आप यहां पर क्या मैसेज दे सकते हो? नॉट comment. This message you can display with the else option. Fine. तो इस तरीके से बहुत सारे patterns हैं that you can create in Lex and Yak. So you try with yourself, practice करिए. If you will face any problem, you can ask me.